वेलकम बाय एफ एस सतार। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ न्यूट्रल जोन। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास न्यूट्रल जोन होता क्या है या कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, या ये चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है, ये नहीं करता। अगर हमारे पास दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तब कहाँ पे होगा, अगर दोनों नेगेटिव है तब कहाँ पे आएगा, अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये कहाँ पे आएगा। तो आज इसी के रिलेटेड हमारी डिस्कशन है न्यूट्रल जोन। सपोज करें हमारे पास दो चार्जेस हैं, लेट सपोज Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज आल्सो पॉजिटिव। यानी कि हमारे पास अगर देखा जाए केस 1 आएगा, बोथ आर लाइक चार्जेस, आर लाइक चार्जेस। Q1 भी पॉजिटिव है, हमने सपोज कर लिया, Q2 भी क्या है पॉजिटिव है। तो हमने ये कैलकुलेट करना है हमारे पास न्यूट्रल जोन की लोकेशन क्या होगी। सपोज Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस। ओके, वी आर गोइंग टू राइट दिस हियर। सपोज Q1 एंड Q2 बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस। Here is, suppose an electron is placed between the charges. As this one is positive and this one is also positive, so electron will be attracted by Q1 charges and will also be attracted by Q2 charges. Will be attracted by Q1 by force F1 and will be attracted by Q2 charge will be force F2. As electron is negative charge and placed between both the same charges, and we have considered both are positive charges, so electron will be attracted by Q1 and Q2. Here you can see the force F1 is due to the charge Q1 and F2 is the due to charge Q2, but the direction of these two forces is different or opposite direction. Let's suppose an electron will be attracted by F1 and F2 but in the direction opposite. Here the point will become when these forces become equal in magnitude. F1 will be equal to F2. Then what will be happen? Suppose here the force acted by Q1 is 2 Newton and Q2 is also 2 Newton. These are the same forces. Magnitude is same, 2 Newton and 2 Newton, but the direction is opposite. What will happen? This will cancel each other. Then the net force acting on a charge will be 0. The reason is that the magnitude of force becomes equal and the direction is opposite, and the net force acting on it will be 0. As we know, F is equal to Q into E. Let's suppose Q is electron and here we place negative. If F net, then Q into E net. Can you tell me what will be the net electric field intensity when the net force acting on a charge is 0? If the net force acting on a charge is 0, then the net electric field intensity will become also 0. Here we can see then that E net will be 0. Remember that we are discussing just the magnitude here. F1 will be equal to F2. This is the vector form. Then you have to put down the negative sign here. Same case will be here. E1 is equal to E2. Electric field intensity due to one charge in magnitude will be electric field intensity due to charge 2 in magnitude. You have to write down this equation. Okay, if we are going to put the electron here, then what will happen? This is the positive charge. This will be attracted by force F1. This is the also positive charge. The electron will also be attracted by force F1, F2. Here the direction of these two forces is same. Then there is no point where the electron will be at rest, or in other words, there will be the no point where the net electric force on a charge will be 0. Okay, I am going to repeat this one. If you put the electron at here,
then F1 and F2 both have the same direction. They will not cancel each other, and the same will be here. If you can see here, F1 and F2 both are in the same direction, here and here. Okay, here and here. F net is not equal to 0. Here F1 plus F2, and here F net is not equal to 0. रीजन क्या होगी, F1 और F2 की डायरेक्शन क्या है, सेम. यहाँ पे भी क्या है, सेम. तो यहाँ पे F नेट क्या होगी आपके पास, F1 प्लस F2. ओके, और यहाँ पे आपस क्या होगी, F नेट F1 प्लस F2. तो यहाँ पे तो नेट कभी भी जीरो आने का चांस ही नहीं, जब चार्जेस दोनों क्या है, सेम. अगर दोनों चार्जेस सेम है तो ये वाला पॉइंट जहाँ पे दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन ऑपोजिट, इस पॉइंट को हम कहते हैं न्यूट्रल जोन. और ये कहाँ पे लाइज करता है, बिटवीन द चार्जेस. जब चार्जेस के हैं सेम, सेम केस यही होगा अगर दोनों चार्जेस आपस क्या हो जाते हैं, नेगेटिव. अब ये वाला भी रिपेल करेगा, ये वाला भी रिपेल, तो रिपल्शन एक जगह पे जाके दोनों पे क्या हो जाएगी, सेम, और वहां पे भी नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0. केस 2 देखते हैं. बोथ आर अनलाइक चार्जेस, बोथ आर अनलाइक, सॉरी यहाँ पे अनलाइक चार्जेस. सपोज वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज. One is positive and other is blue for negative and red for positive. अगर आप यहां पे इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे, इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय Q1 एंड विल बी रिपेल्टेड बाय Q2. अट्रैक्टेड बाय Q1 एंड रिपेल्ड बाय Q2. रीजन इज दैट here this is negative charge, this is positive, and here is electron. Positive will attract electron and negative will repel electron, and in between the charges the net force will become equal to F1 plus F2 between the charges. The reason is that the direction of force is same. Okay, suppose you place the electron at that point. अगर आप यहां पे इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तब आपस क्या होगा, ये चार्ज है पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव. तो यहां पे जो चार्ज 1 की वजह से फोर्स 1 तो क्या लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स. द रीजन इज हियर इज पॉजिटिव चार्ज, दैट इज द इलेक्ट्रॉन, एंड द Q1 विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन एंड देन Q2 विल रिपेल इलेक्ट्रॉन बिकॉज दिस वन इज द नेगेटिव चार्ज. यहां पे जाके दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी, या ऑपोजिट. अगर यहां पे देखा तो हमारे पास यहां पे चांस है कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाए, 0, बिकॉज एफ, यानी कि वहाँ पे जाके F1 की मैग्नीट्यूड, F2 की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट. तो वहाँ पे जाके चार्ज पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 लगेगी, तो F नेट कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0. सेम अगर इलेक्ट्रॉन को उठा के आप यहाँ पे रख दें तब भी उस पर कितनी लगेगी, फोर्स 0. लेकिन इनके दरमियान में कहीं पे भी कोई पॉइंट ऐसा नहीं आता जहां पे नेट फोर्स क्या हो जाए, 0. तो हम कह दें कि नेट फोर्स 0 होगी. इस पॉइंट को हम किसका नाम दे देते हैं, न्यूट्रल जोन. यहां पे F1 F2 के बराबर होगी और मैग्नीट्यूड F1 की इक्वल टू F2, सेम E1 किस पे, E2. ये सारी की सारी कंडीशन किसके लिए है, न्यूट्रल जोन के लिए. ये कहाँ कब एप्लीकेबल होगा, जब कहाँ पे है, न्यूट्रल जोन. तो हमने यहाँ से 2 कंक्लूजन निकाल लेंगे. अगर दोनों चार्जेस सेम है, न्यूट्रल जोन बिटवीन द चार्जेस लाइज करेगा. अगर दोनों चार्जेस डिफरेंट है तो न्यूट्रल जोन आउटसाइड द चार्जेस लाइज करेगा. तो हमारे पास जो कंक्लूजन या नोट के तौर पे हम पॉइंट लिखेंगे, नोट 1 हम लिखेंगे न्यूट्रल जोन विल बी या will lies between the charges if both are like charges. और सेकंड हमारे पास जो निकलेगा कंक्लूजन के, हमारे पास कौन सा निकलेगा कंक्लूजन, यहां पे मैं सेकंड कंक्लूजन लिख देता हूं कि हमारे पास सेकंड क्या आएगा कि न्यूट्रल जोन जो होगा वो आउटसाइड द चार्जेस लाइज करेगा जब दोनों चार्जेस के अनलाइक.
So the neutral zone will be lies outside the charges if both are unlike charges. यानी कि अगर तो हमारे पास दोनों सेम चार्जेस हैं, न्यूट्रल जोन बिटवीन द चार्जेस लाइज करेगा, अगर दोनों ऑपोजिट हैं तो न्यूट्रल जोन क्या लाइज करेगा, आउटसाइड द चार्जेस। तो ये चीज़ याद रखनी, जब भी न्यूट्रल जोन की बात आएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी जीरो होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और वहाँ पे यहाँ जब भी न्यूट्रल जोन का वर्ड आएगा आप इन सब में से कोई भी कंडीशन एप्लीकेबल कर सकते हो। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि न्यूट्रल जोन क्या होता है। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हों, दोनों नेगेटिव हों बिटवीन द चार्जेस, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो आउटसाइड द चार्जेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।